Hello everyone, welcome to our visionary classes. Okay, so today's lecture is on the first paper of the teaching aptitude topic. The lecture 2 is about the level of teaching. Okay, before I would like to start my lecture, I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. Okay, and you can also join our regular online classes. Okay, so let's start. So here we will understand the levels of the teaching. Okay, so in the level of teaching, the first level is the memory level, the second level is the understanding level, and the third level is the reflective level. Okay, so these are the types of levels of a teaching. Okay, so before we will discuss about this kind of levels, we should know a basic term that is called as cognitions. Okay, cognitions. So cognitions means what? Okay, so here you can see cognitions means we have a picture of a person's brain and it is lying within that brain. Okay, so what is cognitions? Okay, anything that you think or a process that going in your mind is called as cognitions. Okay, so your consciousness is involved in within a some intellectual activity. Okay, so you are intellectually doing some kind of work with your consciousness is called as cognitions. Okay, the process of acquiring knowledge is also called as our cognitions. So you should remember this kind of meaning of a cognitions term. Okay, so there we are seeing that there is a transition of cognitions means a student from one level to another level goes through this process of level of teaching. Okay, so what happens, you are first a child, then you grow to adult, then you grow to old. Okay, so your level of learning and level of experience is growing day by day, so your level of understanding is also increasing. Okay, so that is called as transition of cognitions. Okay, so this is the term that is cognitions. So let us discuss the level of teaching after this. So the first level is the memory level. Okay, the first level is the memory level. Okay, तो memory level बोलता क्या है अगर बात करें what is memory level. Okay, so based on the remembering facts. Okay, जहां पे आप based on the remembering facts मतलब पुराने कुछ facts हैं और उनको याद करके आप उस चीज को समझ रहे हैं. ठीक है, तो that is called as remembering facts. Okay, मतलब आप चीजों को याद कर रहे हैं. ठीक है, आप उसको एक लेवल तक जाके समझ नहीं रहे हैं, आप बस उसको याद कर रहे हैं. ओके, देन क्या होता है कि टीचर जस्ट डिक्टेट्स एंड लर्नर टेक्स द नोट्स. तो इस टाइप ऑफ लेवल में आप क्या होती है कि टीचर जस्ट आपको कुछ चीजें बताते हैं और लर्नर उसको लेते रहते हैं. ठीक है, और उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को देने वाले पहले जो है हमारे हर्बर्ट ने दिए थे. ओके, सो दिस वाज द मेन प्रोपोनेंट, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था. ठीक है, इस ये क्या होता है कि ये होता है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. ठीक है, जहां पे चाइल्डहुड लेवल पे आप जैसे कि जानते होंगे, आपने भी बचपन में एलकेजी यूकेजी और क्लास 1 में पढ़ाई की होगी, तो वहां पे आपको जो चीजें बोली जाती थी आप बस उसको याद करते थे, आप उसके पीछे का तथ्य और कंसेप्ट नहीं समझते थे, आप जस्ट उसको याद करते थे और एग्जाम में जाके उसको देते थे. तो ये एक चाइल्डहुड स्टेज की जो लेवल होती है याद करने की, दैट इज मेमोरी लेवल. ओके, सो क्या होता है कि हैबिट ऑफ रॉट मेमोराइजेशन. ओके, सो रॉट मेमोराइजेशन मतलब आप चीजों को याद करते हैं, आप फैक्ट्स को याद करते हैं, समझने की जगह में आप उसको याद करते हैं. ओके, देन आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस, मतलब कुछ चीजें आपको दी जाती है, आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स देते हैं इस केस में. ठीक है, स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है यहाँ पे. ठीक है, इसमें कुछ इवैल्यूएशंस के भी मेथड्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड होता है ओरल, रिटेन और एसे टाइप एग्जामिनेशन. ओके, तो ओरल तो होता ही था, बचपन में हमको भी टेबल याद करना पड़ता था और टेबल को बताना पड़ता था. सो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कि ओरल, रिटेन और एसे एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, फिर क्या होता है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर जो भी पढ़ाते हैं आप उस चीज को याद करते हैं और उस चीज को ही क्लास में फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करके बताते हैं. ठीक है, तो ये आपका टीचर सेंटर टाइप ऑफ टीचिंग लेवल्स होता है. ठीक है, आप इसको तो समझ गए हैं. चलते हैं हम दूसरे लेवल
हैं दूसरा लेवल हमको बताता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या बता रहा है आप जान लीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये बता रहा है कि आपको अगर कोई कंसेप्ट पता है और आपको उसको अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में या अपने वे में उसको अगर समझा पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उस चीज को समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर दे सकते हैं कि बच्चों को एक मैम है और वो किस तरीके से समझा रही है, उनको मैप में वो मैप दिखा के ग्लोब में समझा रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी वे में अपने पढ़ाए हुए और अपने लर्न किए हुए चीजों को अगर समझा सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो इस कंसेप्ट को देने वाले थे मॉरिसन। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें मेमोरी भी होता है और इनसाइट नॉलेज के बारे में भी समझा जाता है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जिनको समझा जाता है। तो क्या होता है कि इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यू शुड गेटिंग दी मास्टरी ऑफ ए सब्जेक्ट, मतलब मास्टरी कर रहे होते हैं किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज गोइंग बिहाइंड एंड व्हाट इज द नॉलेज यू आर गेटिंग। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है इस जगह पे और प्रिंसिपल्स को भी आप समझते हैं कि उसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, फिर आता है आपका इट, क्या होता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको समझने में अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आप कुछ ऐसे चीजों को इंक्लूड करते हैं कि जिस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली आप रॉट मेमोरी पे नहीं जा रहे हैं, आप इस केस में क्या उनको अच्छे से समझा रहे हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। ओके, सो इसमें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का। सो दिस इज ए अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होता है उसमें आप ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ नॉलेज, जहां की आप अपने पढ़ाई और नॉलेज पाई हुई चीजों को अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ लेवल। ओके, टू द थर्ड वन। ओके, द थर्ड वन टेल्स अबाउट द रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आपने जो सीखा है आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी, इसको हम एक्सप्लोरेटरी लेवल भी बोलते हैं, जहां पे आप चीजों को, पढ़ाई हुई चीजों को सीख रहे हैं और आप इसको दोबारा उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने जिंदगी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है समझ के और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस लेवल में क्या हो रहा है कि आप देखिए स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपने सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली वो लोग नोट डाउन कर रहे हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग, जहां पे एक बच्चा या स्टूडेंट उसको सीख रहा होता है और फिर उसके बाद सीखने के बाद वो उस चीज को फिर अप्लाई कर रहा होता है जिंदगी में। तो इसका जो प्रपोनेंट थे उनको हम हंट बोलते हैं, हंट ने इनको प्रपोज किया था। ठीक है, और इस लेवल ऑफ टीचिंग को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मोस्ट हायर लेवल है, जहां पे क्या होता है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है, जहां पे टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के साथ आप रिसर्च को डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ की जो क्लासरूम होती है वो ओपन और इंडिपेंडेंट होती है, सबके लिए खुली होती है ताकि सब चीज इसमें इंटरेक्ट कर सके, जो भी उस क्लासरूम के एलिमेंट्स है सब चीजें इसमें इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ ओपन एंड इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ level of learning where all the proponents are be included and they can discuss their process. okay, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकता है और साथ ही साथ कंसेप्ट्स बिल्डअप कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और नए कंसेप्ट्स भी बना सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटिव में आप नए कंसेप्ट्स का भी इजाद कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, यू शुड रिमेंबर दैट कि you can also generate some kind of new concept in a reflective level of teaching. okay, and the assessment process are the ऐसे type of evaluation, attitude देखा जाता है बच्चे का, belief system देखा जाता है कितना है और involvement. okay, तो these are the characteristics that are being seen in the reflective level of evaluation. तो आपको I think आपको सब चीज समझ में आया हो। I hope कि if you have some doubts you can ask me in the comment box. Have a good day. Okay, thank you.